Hello friends, as you know that we have been reading the poem The Cloud written by P.B. Shelley. In our previous lecture, we discussed about the poet's little introduction as well as about the poem's theme. We also tried to understand the first stanza of this poem in our previous lecture. Now we will go with the stanza number second and third in this lecture. So let's go with the poem lines of the second stanza of this poem. I sipped the snow on the mountains below, and their great pines grown aghast, and all the night it's my pillow white, while I sleep in the arms of the blast. Sublime on the towers of my sky bowers, lightning my pilot sits, in a cavern under is fettered the thunder. It struggles and howls at fits over earth and ocean with gentle motion. So these are the lines from the stanza second of this poem. Although there are some more lines of this second stanza. So let us go first with these lines. What we mean by these lines. As you know that in this poem the poet is describing about the cloud, about its functions, about the changes that the cloud brings, and about the role of the cloud, about the wandering of the cloud, about the influence of the cloud over the earth or over the universe and in the nature. The theme or the important point of this poem is that the poet refers the change. The poet symbolizes the cloud as means of change. Since it brings rain, we know that gives us life. Since that it also brings the storm which puzzles us, which harms or destroys us, everything on the earth. And in this way, we have both the destructive as well as the constructive effect and powers of the cloud. So the cloud is the symbol of revolution. The cloud is the symbol of the change. And the poet himself was a revolutionary poet, revolutionary romantic poet who believed in change, who wanted to bring a golden age on this earth. So this is what we have seen up to now. Now let's go with these lines. So here snowflakes are falling from the cloud on mountains below. So the mountains are there. I sipped the snow on the mountains below. Mountains are below. And I hear the cloud. So the cloud speaks that I sipped the snow, snowflakes. I fall, or the snowflakes are fallen from the cloud. The cloud drops the snowflakes, जिनको अपन कहते हैं बर्फ़ की सिल्ली, एक तरह से बर्फ़ के ओले टाइप जो होते हैं, वो माउंटेन्स पे नीचे क्लाउड के द्वारा डाले जाते हैं. एंड देयर ग्रेट पाइन्स ग्रोन एगास्ट. और जो माउंटेन है वहाँ पे पाइन्स के, ग्रेट पाइन्स, पाइन ट्रीज के जो है कि बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं माउंटेन के ऊपर. उनके ऊपर जो है कि ये स्नोफ्लेक्स आके गिरते हैं. तो जब वो गिरते हैं तो ये इमेजिनेशन है, इमेजरी है कि दे आर पेनफुली सरप्राइज्ड.
So the pine trees are aghast. Aghast means here they painfully surprised. They surprised when the snowflakes fall upon them. Okay, and all the night it's my pillow white. अब इससे क्या होता है, जब स्नोफ्लेक्स वाइट है तो वो इन सब पेड़ पौधों पे और जंगल पे, माउंटेन्स पे, सब पे चादर छा जाती है बर्फ़ की, तो वो उसको क्लाउड इमेजिन करता है, और क्लाउड ये कहता है कि दैट इज़ माई पिलो. सो द माई पिलो हैज़ बिकम द वाइट. एंड वॉट इज़ द पिलो? द रॉक्स आर द माउंटेन्स आर द पिलो ऑफ द cloud. They are the cloud sometimes rest. So these pillows have become white due to the snowflakes that are dropped by or thrown by the cloud. While I sleep in the arms of the blast. So this is the pillow for the cloud, and the cloud is sleeping in the arms of the blast. So blast that is a storm, a kind of the storm. So the cloud also brings the storms, and here the storm is the hailstorm, जिसमें जो है कि बर्फ़ की चादर हो जाती है, बर्फ़ वाला तूफान आता है. तो बर्फ़ का जो तूफान है उसकी गोद के अंदर, और माउंटेन जिसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हुई है, उसका तकिया लगा करके क्लाउड जो है कि वहाँ रेस्ट करता है. दिस इज़ वॉट हियर वी हैव in these lines. Now sublime on the towers of my sky bowers. So जो आसमानी जो टावर्स हैं वो क्लाउड के जो है कि बावर्स हैं, माने रेजिडेंस हैं. स्काई बावर्स, स्काई रेजिडेंस है क्लाउड का. जो ऊंचे ऊंचे जो टावर का मतलब यहाँ माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स हैं बहुत हाईएस्ट पीक के, दे आर द बावर्स ऑफ द क्लाउड. एंड लाइटनिंग माई पायलट सिट्स. और वहाँ पे जो है कि उन टावर्स के ऊपर जो क्लाउड के रेजिडेंस, वहाँ पर लाइटनिंग जो है वो एज ए पायलट के रूप में वहाँ बैठता है, और वो वहाँ बैठ करके और क्लाउड को जो है कि रोमिंग कराता है, उसको दौड़ाता है, उसको चलाता है. इन ए केवन अंडर इज फैटर्ड द थंडर. और नीचे जो केवन्स हैं, गुफाएं हैं, माउंटेन्स के नीचे घाटियाँ हैं, उनके अंदर तूफान दौड़ता है. इट स्ट्रगल्स एंड हाउल्स एट फेट्स ओवर द अर्थ एंड ओशन विद जेंटल मोशन. तो इस प्रकार से क्या होता है कि लाइटनिंग जो है वो एज ए पायलट के रूप में है, जो कि क्लाउड को गाइड करती है इन द कोर्स ऑफ द जर्नी. और लाइटनिंग जो है वो जैसा बताया कि एरियल स्काई जो हाई स्काई है, उसके अंदर हाई टावर्स जो माउंटेन्स के हैं, वहाँ पे लाइटनिंग बैठती है, एक तरह से वहाँ पे रहती है, और ये जो है कि क्लाउड के साथ में होती है. और नीचे जो है कि थंडर है गुफाओं के अंदर. तो ये सब चीज़ें जैसे हम जानते हैं कि लाइटनिंग भी होती है, थंडर तूफान भी आता है, आवाज़ भी आती है जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं. और ये थंडर जो है कि बाहर आने की कोशिश करता है, और इसकी जो हाउल्स है, माने थंडर की जो कड़कने की जो आवाज़ है, वो इंटरवल्स माने रुक रुक करके हमें सुनाई देती है. दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दीज लाइन्स. नाउ अगेन other lines of this stanza. This pilot is guiding me. So here the cloud is speaking. Cloud speaks, says that this pilot who is sitting on the highest mountains, on the peak of the mountain, it guides me. So who is the pilot here? The pilot is lightning. जो बिजली जो कड़कती है उस समय, that is a pilot. और ये पायलट क्लाउड को गाइड करता है उसका इन द कोर्स ऑफ द वे. Lured by the love of Jenny that move in the depths of the purple sea. और ये भी जो पायलट है, ये लाइटनिंग है, ये भी जो पर्पल सी है उसकी डेप्थ के अंदर ये भी लॉर्ड किया जाता है बाय द लव ऑफ जेनी के लव के द्वारा. अर्थात लाइटनिंग जो एक पायलट है क्लाउड का, वो अर्थ और ओशियन दोनों जगह जो है कि इसको गाइड करता है. और लाइटनिंग इज एक्चुअली इन लव विद स्पिरिट्स हु ड्वेल इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. ऐसा लगता है कि जैसे जो लाइटनिंग है वो एक तरह से जो स्पिरिट्स हैं समुद्र की,
का एक तरह से लवर है और उनके लव के साथ में ही ये मूव करता है। ओवर द रेल्स एंड द क्रेक्स एंड द हिल्स, ओवर द लेक्स एंड द प्लेन्स, सब जगह जो है कि ये जो लाइटनिंग है वो बादल को गाइड करते हुए आगे बढ़ती रहती है और बादल उसके साथ साथ में मूव करता रहता है। रेल्स में जाता है, क्रैक्स में जाता है, लेक्स पे जाता है, प्लेन्स पे जाता है, और जहाँ भी वो ड्रीम कर रहा है माउंटेन में या स्ट्रीम में, तो वहाँ जो भी माउंटेन, स्ट्रीम, समुद्र, उसमें जो भी स्पिरिट्स हैं उन सबको ये जो है कि लव करता है, प्रेम करता है। कौन? लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इज द लवर ऑफ ऑल द स्पिरिट्स दैट रिजाइड्स इन streams, in the ocean, or on the lakes, on the plains, etc. And there, these spirits are in fact, the poet means to say, they are dreaming, they are sleeping, as well as they are in love with the lightning. And I all the while bask in heaven's blue smile. और क्लाउड कहता है कि इस तरह से मैं जो है कि हेवंस का जो ब्लू स्माइल है उसके अंदर मैं बास्किंग करता रहता हूँ, मैं नहाता रहता हूँ, आनंद लेता रहता हूँ। और वाइलिस्ट ही इज़ डिजॉल्विंग इन रेन्स, और उस समय फिर ये जो है कि रेन्स के अंदर जो है डिजॉल्व हो जाता है। यानी अर्ज्ड बाय दैट लव, लाइटनिंग फ्लैशेज ओवर स्ट्रीम्स एंड रॉक्स, ओवर द हिल्स एंड लेक्स एंड ओवर द प्लेन्स। ऑल दिस टाइम द क्लाउड एंजॉयज द वार्मथ ऑफ द ब्लू स्काई। जो ब्लू स्काई की जो गर्मी है उसका क्लाउड आनंद लेता रहता है। और जब वो उधर से वार्मथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के पानी, बादल कैसे बनते हैं, दैट वी नो। भाई तेज़ धूप, तेज़ गर्मी पड़ती है, तेज़ गर्मी की वजह से, जो सन की हीट की वजह से, द वाटर ऑफ द ओशियन इज एवेपोरेटेड, भाप बन कर के ऊपर जाता है, ऊपर जा कर के, और वहाँ फिर ये जो है कि इसको जैसे ही ठंडी हवा का एक संपर्क में आता है तो ये बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद में जैसे बादल नीचे आते हैं और ठंडी हवा के उसके संपर्क में आते हैं तो फिर ये बरसात के रूप में नीचे आता है। दैट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए क्लाउड। यहाँ क्या है कि द पोइट इज टॉकिंग इन ए मेटाफोरिकल वे, इन अ फिगरेटिव वे, कि किस प्रकार से द क्लाउड इज एंजॉइंग, the cloud is in love with the spirits which are residing in the ocean, and because he is in the love, lightning is there. So lightning की वजह से ये सब जो है कि फिर ऊपर उठ करके और फिर नीचे पानी गिरता है। So in these lines some more pictures of nature are given by the poet. Natural phenomena are depicted in the fanciful manner. So in a fanciful manner, the natural phenomena of rainwater, of the making of the cloud, here has been depicted and described by the poet in these lines. Now we come to the stanza third. Just a minute. In the third stanza, let's go with the lines. The sanguine sunrise with his meteor eyes and his burning plums outspread leaps on the back of my sailing wreck when the morning star shines dead as on the jag of a mountain crag which an earthquake rocks and swings. An eagle, elect one moment, may sit in the light of its golden wings, and when sunset may breathe from the lit sea beneath, its ardors of rest and of love, and the crimson pall of eye may fall from the depth of heaven above. With wings folded, I rest on mine airy nest, as still as a brooding dove. So, in these lines, friends,
In the beginning lines of this stanza, we have the description of the morning when the sun climbs up in the sky and riding on the back of the cloud. So the sun is supposed to be driving or riding on the back of the cloud, as if the cloud is taking ahead the sun, as if the sun is sitting on the back of the cloud. So it seems that the clouds are moving, but we know very well that the clouds are moving and the earth is also moving, not the sun. It seems ऐसा लगता है कि as if a bright winged eagle. तो ये इमेजिनेशन, ये इमेजरी यहाँ डेवलप की गई है कि मॉर्निंग में सन जो है कि जैसे आकाश में चढ़ता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये क्लाउड के ऊपर बैठ करके और आगे बढ़ रहा है. ओके, और इस तरह ऐसा लग रहा है, इसकी तुलना करिए, द पोइट हैज कंपेयर्ड इट एज इफ ए ब्राइट विंग्ड ईगल, जैसे कोई तेज आंखों वाला पंखों वाला विंग्ड वाला ईगल जो है वो बैठा हुआ है जस्ट फॉर ए मोमेंट ऑन द एज ऑफ द रोड. जैसे कोई चट्टान के ऊपर, चट्टान के कोने के ऊपर, एज के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, जैसे कोई तेज पंख वाला ईगल जो है कि बैठा हुआ है और वो जो है कि इस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है. ऐसा इसकी कंपेयर की गई है कि जो सन है in the morning, how it climbs up in the sky riding on the back of the cloud. दूसरा जो सीन है that is about the sunset. अब सनसेट में क्या, सनसेट में जब सारी चीज़ें रेस्ट कर रही हैं, क्रिम्सन जो कलर है इवनिंग का वो छाया हुआ है, क्रिम्सन कलर जो गोल्डन कलर जिसको हम कहते हैं, शाम के टाइम में आप देखेंगे तो हमारे जो मैदान हैं, ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर एक क्रिम्सन कलर सन सेटिंग लाइट का छाया हुआ गोल्डन कलर जिसको अपन कहते हैं रहता है. ये डिसेंड अपॉन ऑल थिंग्स, द क्लाउड स्टॉप्स इट्स जर्नी. तो एट दैट टाइम व्हेन द सन सेट्स, व्हेन द क्रिम्सन कलर ऑफ द इवनिंग इज डिसेंडिंग अपॉन ऑल द थिंग्स, छाया रहता है, देन द क्लाउड स्टॉप्स इट्स जर्नी. तो उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स भी रुक गए हैं, अर्थात क्लाउड्स ने अपनी जर्नी समाप्त कर ली है और इस तरह से मोशनलेस लगता है, बिल्कुल शांत, और क्लाउड्स वगैरह सब साफ हैं, बादल साफ हैं, क्लियर है आसमान. तो ये ऐसे बैठा हुआ है क्लाउड मोशनलेस, जस्ट लाइक ए डॉव. जो डॉव होती है वो बैठती है अपने विंग्स को फोल्ड करके बिल्कुल अंदर, और ऐसे लगता है एज इफ इट इज़ इन ए मेडिटेशन, जैसे ये कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है डॉव. उसी तरह से क्लाउड जो है सन सेटिंग के टाइम में जो है कि क्रिम्सन कलर जब छाया रहता है तो आसमान में हमें ऐसा लगता है कि ये डॉव की तरह मेडिटेशन कर रहा है, बैठा हुआ है, चिंतन में है. इस प्रकार से कई और जो पिक्चर्स हैं, जो नेचर पिक्चर्स हैं, वो इन लाइंस में है. और indeed we feel overwhelmed by the abundance and richness of natural imagery and by the imaginative interpretation of natural phenomena. So the richness of natural imagery is definitely there, और imaginative interpretation जो poet ने जो इस cloud के बारे में किया है वो जो है कि यहाँ पे definitely है. तो इस तरह से इस स्टेंजा का जो है कि ये मीनिंग है कि द सैंगविन सनराइज, सन सेटिंग सनराइज विद हिज मीटियोर आइज, जिसकी बहुत किरणें जो हैं वो तेज़ वाली हैं, बर्निंग जो प्लम्स हैं वो सब खुल जाते हैं. मॉर्निंग के टाइम में हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं. तो लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई, तो ये चढ़ता हुआ, आसमान में चढ़ता हुआ नज़र आता है सूर्य हमें धीरे धीरे. तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एज इफ इट इज़ सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द क्लाउड, और ये इट इज़ क्लाइंबिंग ओवर देयर. व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स डेड, और जब मॉर्निंग स्टार उस समय फिर धीरे धीरे डेड हो जाता है. मॉर्निंग स्टार को हम अर्ली इन द मॉर्निंग एट द राइजिंग सन वी कैन सी द मॉर्निंग स्टार, बट एज द सन मूव्स अहेड and grows, the morning star disappears.
एज ऑन द जैग ऑफ ए माउंटेन क्रेक विच एन अर्थक्वेक रॉक्स एंड शिंग। तो जैसे लगता है जैसे कोई माउंटेन क्रेक के ऊपर, एज के ऊपर कोई ईगल जो है वो अपने विंग्स को जो है कि समेट करके, ठीक है ना, और वहाँ पे बैठा हुआ है इन ए मेडिटेशन, जैसे कोई वो भी चिंतन में हो, इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग्स। ओके। और उसी प्रकार से सनसेटिंग के टाइम में जो है कि फ्रॉम द लिट सी बीनीथ its order of rest and of love, the cloud is also at the rest। और बिल्कुल ऐसे समुद्र के नीचे, जैसे समुद्र के आसपास क्लाउड हमें बैठा हुआ सा नज़र आता है, और उसकी जो क्रिम्सन पॉल ऑफ ईव है, इवनिंग की जो है, मे फॉल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हेवन अबव, वो हेवन से नीचे आ रही हैं, और वहाँ पे क्लाउड जो है कि विंग्स को फोल्ड करके बैठा हुआ है ऑन माइन एरी नेस्ट, जो उसका एरी नेस्ट है, स्काई जो घोंसला है, अर्थात जो आसमान है उसके अंदर बैठा हुआ है, एज स्टिल एज ए ब्रूडिंग डोव। उसी प्रकार से जैसे कोई ब्रूडिंग डोव, मेडिटेटिंग डोव, डोव जो है वो अपने पंख समेट करके बैठा रहता है, एज इफ इट इज इन द मेडिटेशन। इन द सेम वे द क्लाउड इज ऑल्सो सिटिंग देयर एट द टाइम ऑफ sunsetting। So this is what we have for today. We have discussed two stanzas of this poem, and one we did yesterday. The last three stanzas we will discuss in our next lecture. Thank you very much, friends. I hope you will enjoy it. See you